Hi guys, welcome to the ninth and 10th Unacademy CBSE channel. I am Shreya Kaushal and I'm your educator for chemistry. मैंने अभी तक आपको 2 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं. मैंने आपको मैटर इन आर सराउंडिंग्स एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ा दिया है. आई हैव कंडक्टेड अ क्विज ऑल्सो. देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव ऑल्सो टॉट यू 2 लेसन्स ऑन बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपका पूरा बेसिकली 9th का जो भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो 2 लेसन्स में कवर हो जाते हैं. ओके, सो व्हेन वी स्टार्ट वी ऑलरेडी नो व्हाट वी आर गेटिंग आवरसेल्व्स इनटू. So as I said, welcome to the channel. I am Shreya Kaushal. I am from Delhi. I study sociology. मैं भी sociology में अपना graduation कर रही हूँ. I am in Delhi University. Civil services aspirant हूँ मैं. I'm a musician, I'm a painter and I'm a reader. And most importantly, I'm your guide through 9th standard chemistry. Okay? और अगर आप मुझे Unacademy पे follow करें तो आपको मेरे साथ chemistry और साथ साथ history भी पढ़ने मिलेगी. So that's me guys. I'm really excited and really happy to be teaching all of you. Thank you so much for watching my videos and I'm glad that you guys are liking it so far. So आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम इस मैटर अराउंड अस प्योर का NCERT क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एंड मोर. ओके, तो मैं आपका 1 बाय 1 सारे NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी आपके साथ और भी क्वेश्चंस कुछ डिस्कस करूँगी. So guys, this includes the questions जो आपके blue में लिखे रहते हैं, यानी कि the questions which are in your exercises in the middle of the chapter as well as the end of the book, end of the chapter questions, and there will be some extra questions here and there जो कि common doubts या फिर NCERT exemplar या फिर इधर उधर आपसे पूछे जा सकते हैं. So I will also cover that. Alright, so this would be a great video for preparing yourself for your exams, for clearing any doubts that you might have had. Before I get into it, since you're watching this video on YouTube, I must tell you about Unacademy Plus. So guys, Unacademy, as you already know, it is India's largest online learning platform and you are watching its video on YouTube. So this is CBSE class 9th and 10th channel and I'm teaching you class 9th. So with Unacademy guys, you get a lot of these perks, right? So basically I need to tell you to download the app because it's going to be so much more beneficial for you to learn on the app than to learn on YouTube. Alright, so on the app you have daily live classes, like we conduct free live classes just जो आप ऐसे ही देख सकते हैं, which covers part of your portion, and उनमें हम quizzes भी conduct करते हैं. We take live tests and quizzes, right? To evaluate your preparation. Regular mock tests और quizzes होते हैं. अगर आप Unacademy Plus के student हैं तो आपको अपना डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा अपने परफॉर्मेंस का. उसके बाद यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज विद Unacademy प्लस. अगर आप प्लस पे हैं देन आपको अपना कोर्स अपने सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, यानी कि आपको नहीं परेशान होना है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें. एवरीथिंग इज़ ऑन अस. ऑल यू नीड टू डू इज़ ट्यून इन टू Unacademy, log into your plus account and watch. That's it. We conduct the quizzes, we give you your evaluation. It's amazing guys. अगर मेरे टाइम में Unacademy Plus होता मैं तो definitely लेती. All our courses are structured in line with your exam syllabus and it helps you prepare for your exam the best. And of course once you get Unacademy Plus, एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारे आपका सिलेबस कवर हो जाता है, यानी कि यू डोंट जस्ट गेट टू स्टडी वन सब्जेक्ट. आपको सारे सब्जेक्ट्स पूरे, लाइक फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस, एवरीथिंग यू गेट जस्ट फ्रॉम वन सब्सक्रिप्शन. आपको सारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप देख सकते हैं. जो अभी कोर्सेज चल रहे हैं उनके लिए भी एनरोल कर सकते हैं. तो एक सब्सक्रिप्शन से आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गाइस. इट्स incredible. And once I tell you the price now, you'll want to go and get it today. For how cheap you get all of this, it's incredible. All right, so of course you have live classes. These are live classes with the top educators in the country. All of them are experts in their own field. Okay, these are all experts. You get to study your subjects from the top educators in the entire country, right? Of course you get a comprehensive syllabus, यानी कि आपको सारे ये subjects पढ़ने मिलेंगे. You get to study maths, Hindi, science, English, and that too from the top educators.
है ना। ये सब मिलेगा आपको विद अनअकैडमी प्लस। एंड बिफोर यू आस्क मी कि मैम प्लस कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ऑलराइट, आप प्ले स्टोर ऐप स्टोर पे जाइए, डाउनलोड द ऐप, रजिस्टर फॉर फ्री। ऑलराइट, and do follow me. My profile link is also down in the description below. It's Shriya Kaushal 1, है ना। आप मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा, मैंने काफ़ी सारे फ्री लाइव क्लासेस दिए हुए हैं फॉर योर बेनिफिट। एंड वंस यू हैव फॉलोड मी, यूज़ माई रेफरल कोड। आपको मेरे को फॉलो करके, आप मेरे प्रोफाइल पे भी सारे डिटेल्स हैं, आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए जो कि मेरा नाम है श्रिया, SHRIYA, दैट्स इट। श्रिया यूज़ करिए एंड गेट अ 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। एंड नाउ विदाउट मेकिंग यू वेट एनी मोर, आई विल टेल यू कि 10% ऑफ आपको कितना मिलता है। तो आपको ऐसे 1 साल का 12 मंथ्स का पड़ता है 12,500 का। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें जो कि श्रिया है, यानी कि माई नेम, then you get your subscription just for 11,250, यानी कि आपको 11,250 में ये मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन फॉर 1 year, all of the subjects, guys. What can possibly make it easier to crack it, right? So download the Unacademy app, follow me over there, get the plus subscription, all of the subjects, 1 year का subscription ले लो, settle रहोगे 1 year के लिए। all right, get it, follow me, my referral code is just my name, all you need to remember is my name, it's SHRIYA, and you can get the 1 year subscription just for 11,250, right? सो गाइज, अगर आप आगे के लिए सोच रहे हैं, अगर आपको 9th 10th 11th 12th का भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप वो भी ज़रूर ले सकते हैं। यू कैन गेट दैट फॉर 36,000, नॉट 40,000, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें अगेन। सो बेसिकली गाइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आपको कोई भी कोर्स, देयर आर अ लॉट ऑफ पैकेजेस अवेलेबल, whatever suits your needs the best, आप वही लीजिए। 9th 10th 11th 12th 10th 11th 12th, अगर आपको जेई देना है देन जेई के लिए, नीट का अंडर ग्रेजुएट, एनीथिंग, you choose any course that you want and get a 10% off. Anything that suits your needs the best, get a 10% off, use my referral code on that. प्लीज़ सब्सक्रिप्शन लेते समय भूलिएगा नहीं टू गेट अ डिस्काउंट, भूलिएगा नहीं मेरा नाम, एंड यू गेट अ 10% ऑफ ऑन एनी ऑफ द कोर्सेज दैट यू वांट, राइट। 9th 10th 11th 12th या फिर 10th 11th 12th का सब्सक्रिप्शन। और क्या बता रही हूँ मैं गाइस, टेलीग्राम पे हमें ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पे वी आर सून स्टार्टिंग अ टेलीग्राम टेस्ट सीरीज़ which you don't want to miss out on. Okay, टेलीग्राम टेस्ट सीरीज में हम आपको टॉपिक वाइज आपका पेपर सेट करके देंगे जो कि हम आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे और फिर शाम में आपके साथ वही डिस्कस करेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द टेलीग्राम का ऐप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टे अपडेटेड, है ना, स्टे अपडेटेड टू ऑल ऑफ लाइक द क्लासेस दैट वी आर कंडक्टिंग, जो भी अलग अलग एजुकेटर्स कर रहे हैं। सो टेलीग्राम टेस्ट सीरीज, डू नॉट फॉरगेट। Now without further ado, let's crack it with Unacademy. Download the app, but right now we're going to solve NCERT solutions. तो ये आपके NCERT में दिए हुए हैं, तो let's start. All right. First question is, what is meant by substance? तो substance क्या है guys? Substance मैंने आपको बताया था, substance is a pure form of matter and a substance has definite proportion and composition. It is a pure form of matter. Substance क्या है? Pure form of matter है। ये मेरी first slide में ही था when I was teaching you is matter around is pure and it has a definite properties and composition. ऑलराइट, एग्जाम्पल के लिए आप फॉर एग्जाम्पल आप आयरन ले सकते हैं, Fe आयरन, है ना, एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। क्लियर है? वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया है, गिवन इन योर एक्सरसाइज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर्स।
तो होमो का मैंने आपको मतलब बताया था, होमो यानी कि सेम, एंड हेट्रो यानी कि डिफरेंट, है ना। तो होमो और हेट्रो में हमारा डिफरेंसेस मांग रहा है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा? इसके जो पार्टिकल्स हैं होमोजेनस मिक्सचर में, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और हेट्रोजेनस मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंप्लीटली मिक्स्ड एंड दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द बेयर आईज और मे बी अंडर अ माइक्रोस्कोप. सो पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि कैन बी सीन बाय द नेकेड आई और माइक्रोस्कोप, है ना. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि इट हैज अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी कि एक बराबर कॉम्पोजिशन होता है इसका, है ना. दिस डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, यानी कि इट हैज इर्रेगुलर कॉम्पोजिशन. और थर्ड एंड आखिरी पॉइंट क्या है? होमोजेनस मिक्सचर्स में there are no apparent boundaries of division between the particles, but heterogeneous mixtures में there are noticeable boundaries of distinction. इसके होमोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, वन सेकेंड, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, दैट वुड बी अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. एंड होमोजेनस में लेमोनेड ले सकते हैं, दैट्स अ होमोजेनस मिक्सचर. ऑलराइट, सो क्या हमने जाना, होमोजेनस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है, देयर आर नो अपैरेंट बाउंड्रीज ऑफ डिवीजन. हेट्रोजेनस पार्टिकल्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे कैन यूजुअली बी सीन बाय द नेकेड आई और अंडर अ माइक्रोस्कोप. इरेगुलर कॉम्पोजिशन होता है, नोटिसेबल बाउंड्रीज होती हैं. एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर, और इधर एग्जाम्पल लेमनेड. ओके, how are sol, solution and suspension different from each other? Okay, sol, solution और suspension, तो चलिए देखते हैं. sol, solution and suspension. Alright, so let's see sol, solution और suspension कैसे different है. सबसे पहले तो sol और solution heterogeneous mixtures होते हैं, सॉरी, sol और suspension heterogeneous mixtures होते हैं और solution homogeneous mixture है. We all know that sol and suspension are heterogeneous mixtures and solution is a homogeneous mixture. उसके बाद sol में जो size of particles होता है, you don't exactly need to remember this, but it is between 10 to 7 या फिर 10 to 5 centimeters. उसके बाद solution में less than 1 nanometer होता है, which is why it's homogeneous also, and suspension में it's more than 100 nanometer, यानी कि it's pretty evident the size of the particles. Okay, so it has bigger particles alright, let me just not write the इसका, इस जिसकी solution के जो particles होते हैं they are less than 1 nanometer. आगे appearance पे जाएंगे तो sol का usually is glassy, appearance is glassy and clear,
और सल्यूशन का इज अनक्लाउडेड एंड क्लियर, और सस्पेंशन इज यूजुअली cloudy and opaque. Here we are talking about appearance. Here we are talking about type of mixture. This diffuses very slowly. Solution में rapid diffusion होता है guys. और सस्पेंशन में डिफ्यूजन होता ही नहीं है. So this was about rate of diffusion. Okay. एक और कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस ले सकते हैं, स्टेबिलिटी ले लेते हैं. ठीक है, तो हमने पढ़ा है ना स्टेबिलिटी. तो सॉल जो होता है वो इट्स प्रीटी स्टेबल. आई एम सॉरी, सॉल इज प्रीटी स्टेबल. उसके बाद हम देखेंगे सोल्यूशन, तो इट्स हाईली स्टेबल. एंड सस्पेंशन इज अनस्टेबल. इसका एग्जाम्पल हम लेंगे तो सॉल में हमारा हो जाएगा मिल्क, ब्लड एट्सेट्रा. ओके, इसमें सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन, लेमनेड वगैरह ले सकते हैं हम, है ना. सस्पेंशन में सैंड इन वाटर या फिर डस्टी एयर, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ सस्पेंशन. ओके, सो क्लियर है. एक बार मैं पढ़ देती हूँ. टाइप ऑफ मिक्सचर, सॉल होता है हेट्रोजेनस, सस्पेंशन भी होता है हेट्रोजेनस, सोल्यूशन होता है होमोजेनस मिक्सचर. अपीयरेंस इसका ग्लासी और क्लियर होता है, सोल्यूशन का अनक्लाउडेड और क्लियर होता है, और सस्पेंशन का क्लाउडी और ओपेक होता है. सोल्यूशन डिफ्यूज काफ़ी, सॉल काफ़ी डिफ्यूज स्लोली करता है, सोल्यूशन काफ़ी जल्दी डिफ्यूज होता है, और सस्पेंशन डिफ्यूज होता ही नहीं है. दिस वॉज अबाउट स्टेबिलिटी. सो सॉल जो है उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी स्टेबल है. सॉल सोल्यूशन इज हाईली स्टेबल एंड सस्पेंशन इज अनस्टेबल. क्लियर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 grams of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. Okay, तो हमारा mass of solute कितना दिया हुआ है guys? Mass of solute. I'm trying कि मेरी handwriting थोड़ी better लगे. It's a little tricky to write over here. If you don't mind, I'm just going to write over here. Okay, तो mass of solute जो कि हमारा यहाँ पे NaCl है, इट्स 36 grams, है ना. ओके, उसके बाद हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि यहाँ पे हमारा वाटर है, इट इज़ 100 grams. क्लियर. 36 ग्राम 100 grams. ओके, मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? 36 + 100 यानी कि 136 grams इज मास ऑफ सोल्यूशन. यहाँ तक पता चल गया गाइस? ऑलराइट. अब चलिए कॉन्सेंट्रेशन जाने. तो कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा. सो 36 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 100 कितना होगा? ये इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू 26.47%. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 26.47%. यानी कि हमारा यहाँ पे टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं था. तो बच्चे जिनको कंफ्यूज होना था वो टेम्परेचर देख के कंफ्यूज हो जाएंगे, बट जिन बच्चों को पता है क्या करना है वो यहीं से कर लेंगे. ओके, तो 26.47
percent है हमारा आंसर. This is the concentration of the solution. And also this is also to let you know that sometimes extra information is given to confuse you. Okay, so as long as you know what you have to do, you won't get confused. All right, चलिए हमारा next question क्या है? How will you separate a mixture containing kerosene and petrol जिनका difference in the boiling point is more than 250 degree Celsius या 25 degree Celsius? I think this is 25 degree Celsius होना चाहिए इनके बीच के difference boiling point में. So it's just wrong. So the difference in the boiling points is 25 degree Celsius. So which are miscible with each other. तो हमने क्या पढ़ा था कि हम कैसे इन्हें सेपरेट करेंगे. दिस कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, क्योंकि वी कैन सी दैट देयर इज अ कंसिडरेबल डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, अदरवाइज वी वुड हैव यूज्ड व्हाट वी नो एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, तो इसे हम कैसे करेंगे? वी विल डू दिस बाय टेकिंग इट इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क. उसके बाद हम उस डिस्टिलेशन फ्लास्क को हीट करेंगे, ऊपर से वो ब्लॉक रहेगा. ओके, आई विल जस्ट ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. ओके, दिस वुड बी ब्लॉक्ड बाय अ stopcock. This would be in turn attached to this water condenser sort of a thing. Okay, and this would lead out to like a beaker. This is kept on a Bunsen burner. Okay, so यहाँ पे रहेगा आपका केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर. ओके, मैंने इसे हीट करिएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इट वुड कम आउट ऑफ हियर इन फॉर्म ऑफ वेपर एंड इट वुड गेट इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म ओवर हियर. तो ऐसे ये मिक्सचर सेपरेट होगा बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन. क्लियर है? ठीक है. Name the technique used to separate butter from curd, salt from seawater and camphor from salt. बहुत बढ़िया. तो butter from curd हमने पढ़ा है कैसे separate करेंगे. This can be separated by a process called centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है? रैपिडली एक एक्सिस पे स्पिन करता है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सिस से दूर चले जाते हैं, दे सेटल डाउन, द लाइटर पार्टिकल्स दे कम ऑन टॉप, एंड दिस इज हाउ सच अ सॉल या कोलॉइडल मिक्सचर इज सेपरेटेड. Salt from seawater. Salt from seawater we can separate from the simple process of evaporation. So we can use the simple evaporation technique to separate salt from seawater. Distillation causes the water to evaporate, leaving behind the solid salt behind, hence the production of salt. Okay? Evaporation, crystallization. Okay? Camphor from salt. Camphor हमें क्या पता है? Camphor करता है, it's a product that sublimates. तो कैम्फर को हम सॉल्ट से कैसे दूर करेंगे? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन. ओके, जब हम हीट करेंगे तो सॉल्ट जो कि इम्प्योरिटी है वो सब्लिमेट नहीं करेगी. कैम्फर विल डायरेक्टली गो इनटू इट्स गैसियस स्टेट और वो सब्लिमेट कर जाएगा. कूल. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग. सबसे पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर. तो इसके लिए दिस कैन बी सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर. वी कैन सेपरेट इट थ्रू द सिंपल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. ओके, यानी कि नमक पानी. ऑल राइट, या फिर इवेपोरेशन नहीं तो क्रिस्टलाइजेशन. ओके, ammonium chloride from a mixture containing sodium chloride and ammonium chloride. Okay, so for this, as we discussed in the last question also, we will use the process of sublimation, and I've explained it how. Small pieces of metal in the engine oil of a car
सो ये क्या है, दिस कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन, यानी कि these are the big chunks है ना, तभी I know it says small pieces but then pieces of metal can just be filtered out है ना. All right. Different pigments from an extract of flower petals. तो इससे हम करेंगे separate through the process of chromatography. That's right. क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से सेपरेट करेंगे. क्रोमेटोग्राफी कौन सा है, हम इसे ग्रीक वर्ड क्रोमा से डराइव करते हैं, जिसका मतलब ही कलर होता है. दिस प्रोसेस वी यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स है ना. तो डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स, क्रोमेटोग्राफी. ऑल राइट. बटर फ्रॉम कर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था. बटर फ्रॉम कर्ड हम कैसे सेपरेट करेंगे, वी सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन. दैट्स राइट, वेरी गुड. सेंट्रीफ्यूगेशन से हम सेपरेट करेंगे. सेंट्रीफ्यूगेशन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था. ऑयल फ्रॉम वाटर, ऑयल एंड वाटर आर क्या, दे आर टू इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि ये ऐसे लिक्विड्स हैं जो कि मिलते नहीं हैं. सो इट्स गोइंग टू बी सेपरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फ्लास्क. जिसका डेंसिटी कम है, जिसका डेंसिटी लाइक ज़्यादा है, लाइक इट विल बी फॉर्म टू डिफरेंट लेयर्स. ओके. एंड वाटर जो कि नीचे रहेगा, ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी इट विल फ्लो आउट. एंड व्हेन योर ऑयल इज क्लोजर टू द स्टॉप कॉक, देन यू क्लोज द स्टॉप कॉक. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन थ्रू द फ्लास्क, इज नोन एज डिकेंटेशन. ऑल राइट. हमारा नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी. ये तो सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड जो हम एवरीडे यूज़ करते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन, उससे ही अलग हो जाएगा. जैसे हम चाय पत्ती को चाय से अलग करते हैं, दैट्स व्हाट इट मीन्स. ऑल राइट. आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड. दिस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम टू मेथड्स. सिंस हम आयरन पिन्स की बात कर रहे हैं, तो या फिर हम मैग्नेट्स ले सकते हैं, मैग्नेट्स के थ्रू कर सकते हैं, या फिर मैन्युअली हैंड पिकिंग से भी कर सकते हैं. All right. Wheat grains from husk. All right. इसके लिए तो हमारा बहुत सारा, या फिर हम विंड को यूज़ कर सकते हैं. लाइक विंड से जो लाइटर पार्टिकल्स है वो हवा से बह जाते हैं, या फिर इट कैन ऑल्सो बी यूज बाय सेडिमेंट, लाइक सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन या फिर विनोइंग है ना. So all these procedures can be applied to separate wheat grains from husk. और हमारा लास्ट क्या है, fine mud particles suspended in water. All right. So we can use the process of sedimentation here. Sedimentation से ये जो heavier particles है, they fall to the bottom. It's called sedimentation. So fine mud particles suspended in water through sedimentations. Clear है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं हम लोग. हमने क्या देख लिया, हमने सबका देख लिया. एवेपोरेशन से, फिर वो सब्लिमेशन से, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल फिल्टरेशन से, देन वी हैव क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सिंपल फिल्टरेशन, मैन्युअली या हैंड पिकिंग से आयरन हम सैंड से अलग कर सकते हैं, विंड से या फिर सेडिमेंटेशन से या फिर विनोइंग से व्हीट ग्रेन्स, एंड देन फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. ऑल राइट. हमारा 8th क्वेश्चन है, write the steps you would use for making tea. Use the words solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. तो चाय बनाने का प्रोसेस मांग रहा है और उसमें सब पूछ रहा है कैसे बनाएगा, और उसमें अलग अलग स्टेप्स को, इन टर्म्स को यूज करिए. ठीक है. वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस. तो सबसे पहले तो एक वेसल में लीजिए एक कप ऑफ मिल्क. मिल्क क्या होगा, योर मिल्क इज द सॉल्वेंट. सबको चाय बनानी आती है ना, तो वी टेक मिल्क इन अ वेसल एंड मिल्क सॉल्वेंट है. मिल्क पे फिर हम हीट अप्लाई करते हैं. ओके. उसके बाद क्या करते हैं हम, टी पाउडर या टी लीव्स जिससे भी आप चाय बना रहे हैं उसे बॉइलिंग मिल्क में ऐड करिए. सो टी लीव्स
आर द सल्यूट, है ना। सो उसके बाद हम चाय पत्ती के साथ भी उसे उबालते हैं चाय। उसके बाद जो सल्यूट है यानी कि द टी लीव्स, वो रिमेन कर जाता है एज इट इज इनसॉल्युबल विथ द मिल्क और द वाटर विच वी आर हीटिंग, एंड दिस कैन बी ऑब्जर्व वाइल इट इज स्टिल बॉइलिंग ओनली। ओके, तो इनसॉल्युबल भी हमें यूज करना है। हाँ, सो ये मिल्क एंड टी टुगेदर दे आर इनसॉल्युबल। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम कुछ शुगर भी ऐड करते हैं स्टेज पे, तो शुगर भी सल्यूट बन जाता है। बट शुगर और इसमें क्या डिफरेंस है, शुगर हम जब ऐड करेंगे तो शुगर इज ऑल्सो सल्यूट, बट द डिफरेंस बिटवीन शुगर एंड टी लीव्स एज सल्यूट इज दैट शुगर इज सॉल्युबल, यानी कि ये मिल जाएगा। दिस वॉज इनसॉल्युबल, टी लीव्स एंड मिल्क, शुगर एंड मिल्क, दीज आर सॉल्युबल। ओके, उसके बाद हम जब विल कंटिन्यू स्टरिंग दिस जब तक शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो जाता है टी सोल्यूशन में, एंड इट विल एट वन पॉइंट मिल्क प्लस शुगर विल रीच इट्स सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट हो गया। उसके बाद हम जब टी को बॉईल हो जाती है एंड फिर हम उसे हीट से निकाल देते हैं यानी गैस से निकाल देते हैं, जो इनसॉल्युबल टी पाउडर है वो रेसिड्यू बच जाता है, और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दे ऑल्सो हैव टू, और क्या था सोल्यूशन सॉल्वेंट रेसिड्यू, सो द टी लीव्स दे आर रेसिड्यू। ओके, एंड द फिल्टर मीडियम यानी कि जो हम छन्नी यूज करते हैं दैट इज द फिल्टरेट, यानी कि द स्ट्रेन थ्रू विच वी सीव दिस मीडियम इज एंड व्हाट इज कलेक्टेड, यानी कि जो चाय पत्ती बचेगी थ्रू द स्ट्रेन इज द फिल्टरेट। ओके, कूल है। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कौन कौन से स्टेजेस कर लिए, हमने सॉल्वेंट कर लिया, सल्यूट कर लिया, इनसॉल्युबल कर लिया, सॉल्युबल कर लिया, सैचुरेशन कर लिया, रेसिड्यू कर लिया, स्ट्रेन कर लिया। दैट्स अ लॉट बस चाय बनाने में। सो यू कैन सी हाउ एवरीडे लाइफ में हमारा केमिस्ट्री यूज होता है ना। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। सैचुरेटेड सोल्यूशन को एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन हम जानते हैं, इट इज दैट स्टेट इन अ सोल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच व्हेन अ सॉल्वेंट इज नो मोर केपेबल ऑफ डिसॉल्विंग मोर सल्यूट इन इट विदाउट एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, स्टेट at a specific temperature when solvent is no more able to dissolve more सल्यूट। क्लियर, तो इसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, और जितना अमाउंट ऑफ सल्यूट पे सैचुरेशन पॉइंट अचीव हुआ है वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। प्योर सब्सटेंस हम किसे बोलते हैं, सब्सटेंस इज सेड टू बी प्योर व्हेन इट कंप्राइजेस ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या कंपाउंड्स विदाउट adulteration or with any substance or any divergence in the structural arrangement। यानी कि इट इज बेसिकली जब एक ही तरह का यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स, एटम्स या कॉम्पाउंड्स होते हैं। सो प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट्स या कॉम्पाउंड्स, बेसिकली एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स, एटम्स या कॉम्पाउंड्स होने चाहिए, एंड इट शुड नॉट हैव अंडरगॉन एनी सॉर्ट ऑफ अडल्टरेशन, तब हम उसे साइंटिफिक सेंस में प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, ऑल राइट,
कोलॉइड क्या होता है? तो कोलॉइड एक इंटरमीडिएट होता है गाइस बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन. इसके पार्टिकल्स का बहुत साइजेस हो सकता है, दैट कैन रेंज बिटवीन 2 to 1000 नैनोमीटर्स. कोलॉइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सोल्यूशन बाय यूजिंग द टिंडल इफेक्ट, जिसमें हम लाइट थ्रो करते हैं. ऑलराइट, तो हमें वो लाइट विजिबल होने लगेगी. ठीक है. सो कोलॉइड क्या है? इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन सस्पेंशन. याद रखिएगा, कोलॉइड इवन दो उसकी पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इट इज हेट्रोजेनस इन नेचर. एग्जाम्पल हो गया मिल्क, जेलेटिन, सब कोलॉइड है. ओके, शेविंग क्रीम, एवरीथिंग. सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन तो सबसे पहले एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, विच टेल्स यू मोर अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज. ओके, देन यू नीड टू नो. हेट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें सल्यूट पार्टिकल्स इनसॉल्युबल होते हैं. They remain suspended throughout the mixture and it is unstable also. यानी कि जब तक सस्पेंडेड हैं सल्यूट के पार्टिकल्स तब तक टिंडल इफेक्ट शो करेगा. दिस इज द फेज जहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो करेगा. देन उसके बाद ये अनस्टेबल है, यानी कि द पार्टिकल्स विल सेटल डाउन. ओके, दे अंडरगो सेडिमेंटेशन. उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनस या हेट्रोजेनस मिक्सचर. ओके, ये तो बहुत सिंपल है. सोडा वाटर, एयर, फिल्टर्ड टी और विनेगर. ठीक है. All right. वुड और सॉइल. तो जिसे मैंने ब्लू में बॉक्स किया है गाइस, यानी कि वुड एंड सॉइल, दे आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं है इनका, दे आर हेट्रोजेनस मिक्सचर्स. एंड जिसमें मैंने रेड में बॉक्स किया है, those are homogeneous mixtures. They have a uniform composition. All right, soda water, air, vinegar, filtered tea. Cool. All right, how would you confirm that a colorless liquid given to you is pure water? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कलरलेस लिक्विड है which is given to us, if it is pure water, is if it boils at 100 degree Celsius. इट इज सेट टू बी प्योर. बट अगर उसमें कुछ भी डिक्रीज है, 100 के नीचे बॉयल हो जा रहा है, 100 के ऊपर बॉयल हो रहा है, देन वी इन्फर कि उसका उसमें कोई इट इज नॉट प्योर, या फिर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक एन इम्प्योरिटी इन इट. ओके, सो हाउ वुड यू कंफर्म इफ इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. So which of the following material falls into the category of a pure substance? हमने pure substance के बारे में बात की थी guys. क्या था pure substance? Pure substance is a substance which comprised of only one kind of molecules, atoms or compounds. ठीक है. और क्या इनमें से कौन कौन सा pure substance है? सबसे पहले तो आयरन, ये तो मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था. प्योर. मिल्क क्यों नहीं है, आइस क्यों नहीं है, बताती हूँ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर. आइस ऑफ कोर्स प्योर. देन वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड प्योर. मर्क्यूरी प्योर. ब्रिक, वुड, एयर नॉट सो मच. ऑल राइट. मिल्क इज अ मिक्सचर
उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, सब तो प्योर है। ब्रिक इज अ मिक्सचर, वुड एयर तो हम जानते ही हैं मिक्सचर, हमने अभी बात करी थी। आइस प्योर सब्सटेंस है गाइज, आयरन प्योर है, हाइड्रोक्लोरिक प्योर है, कैल्शियम ऑक्साइड प्योर है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट्स या कॉम्पाउंड्स हैं ये सब विदाउट एनी डाइवर्जेंस इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। सो दैट इज वाई आइस, iron, hydrochloric acid, calcium oxide and mercury are pure substances. Cool? Next, identify the solutions amongst the following mixtures. Solution इसमें से कौन है? Soil तो नहीं है, coal भी नहीं है, तो बचा क्या? Sea water, air और soda water. Sea water किस चीज़ का solution है? NaCl. And water, air a solution of different gases, soda water a solution of gas and water, usually carbon dioxide and water. All right, so all your carbonated drinks, these are, all three of them are solutions. ठीक है, सब mixtures हैं, all mixtures, all solutions are mixtures but all mixtures are not solutions. ठीक है, सॉइल और कोल भी मिक्सचर्स हैं बट दे आर नॉट सॉल्यूशंस। ऑलराइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट? ओके, सॉल्ट सॉल्यूशन तो नहीं शो करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? बिकॉज इट इज होमोजेनस इन नेचर, है ना, होमोजेनस है, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, दिस विल नॉट शो। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इट इज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन यानी कि होमोजेनस, दिस विल ऑल्सो नॉट शो। तो करेक्ट आंसर मिल्क, ये कोलॉइड है, हम जानते हैं कि मिल्क कोलॉइड है, कोलॉइड हेट्रोजेनस होता है, हेट्रोजेनस शो करता है। स्टार्च सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्यों नहीं शो करेगा? बिकॉज ये वाटर के साथ मिक्स होता है और ये बन जाता है। स्टार्च सोल्यूशन लेकिन शो करेगा। ओके, सो वी हैव बी एंड डी, दीज विल शो टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कॉम्पाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले देख लेते हैं एलिमेंट्स कौन से हैं। सोडियम एलिमेंट, सिल्वर एलिमेंट, टिन एलिमेंट और सिलिकॉन एलिमेंट। चलो, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कॉम्पाउंड्स। कैल्शियम कार्बोनेट कॉम्पाउंड, उसके बाद और भी है क्या इसमें? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉम्पाउंड, मीथेन कॉम्पाउंड, सोप compound. All right, यहीं तक है। Cool. Next हमारा soil mixture, किसी और कलर से करूँ क्या? Sugar solution mixture, air mixture, blood mixture। ठीक है, so classify the following elements as compounds and mixtures. ओ कोल बच गया, कोल इज ऑल्सो अ मिक्सचर। तो हमारे मिक्सचर्स हो गए सॉइल, शुगर सोल्यूशन, कोल, एयर, ब्लड एंड सोप। कॉम्पाउंड्स कौन कौन से हो गए? कॉम्पाउंड्स हो गए कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन, और एलिमेंट्स हो गए सोडियम, सिल्वर, टिन एंड सिलिकॉन। ओके, कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? इनमें से केमिकल चेंजेस कौन से हैं? ठीक है,
ग्रोथ ऑफ अ प्लांट केमिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ आयरन्स केमिकल चेंज है. Mixing of iron fillings and sand, this is a physical change. Cooking of food, this is a chemical change. Digestion of food is a chemical change. Freezing of water is a physical change. Burning of candle, it's a chemical change. तो मैंने जिसके आगे C लिखा है वो chemical change है, जिसके आगे P लिख रही हूँ वो physical change है. ठीक है. ग्रोथ ऑफ अ प्लांट क्यों केमिकल चेंज है? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ लाइक अदर प्रोसेसेस जिससे प्लांट बड़ा होता है, विच आर नॉट फिजिकल, जस्ट फिजिकल इन नेचर. ओके. Mixing of iron fillings in sand, physical change. It doesn't really cause any changes in the properties. Freezing of water, change of state of matter is a physical change. ओके तो ये हो गए आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. अब बोनस क्वेश्चंस है कुछ जो कि यू गेट टू सॉल्व विथ मी, सो लेट्स गेट टू इट. सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज होमोजेनस एज वेल एज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. कॉमेंट ऑन दिस. ऑल राइट गाइज, तो सी वाटर हम क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर जो कि हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट बाय इवेपोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. तो सी वाटर इज कंसिडर्ड टू बी होमोजेनस. But seawater also contains mud, decayed plant, etc. other than salt and water, so it is also called heterogeneous. So it is homogeneous because it is a mixture of salt and water. Alright, but it is heterogeneous. Why? Because it also contains other things like mud, decaying plant, है ना, etc. That is why ये both homogeneous भी है और heterogeneous भी बोला जा सकता है. ठीक है. Classify the following as physical or chemical properties. ठीक है. Okay. The composition of a sample of steel is 98% and 1.5% carbon and other elements. तो ये तो हो गई उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट देखते हैं. जिंक डिजॉल्व्स इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. तो ये तो भाई क्लियरली केमिकल प्रॉपर्टी है. वी आर गेटिंग अ डिफरेंट reactant, we're getting a product out of this reaction. It's a chemical property. ठीक है. C, metallic sodium is soft enough to be cut with a knife. This is a physical property of metallic sodium. Okay, so this is a physical property. Most metal oxides form alkalis on interacting with water. This is talking about a chemical change, the chemical property. Cool. So we have B and C as physical properties, and we have A, B, and we have A and B as physical properties, A and C, and we have B and D as chemical properties. Non-metals are usually poor conductors of heat and electricity. They are non-lustrous, non-sonorous, non-malleable and colored. लेकिन मैंने जब आपको ये बताया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि there are exceptions to this. So let's talk about these exceptions. Name a lustrous non-metal. All right. तो एक lustrous non-metal का नाम लेना है तो हम ले सकते हैं आयोडीन को. Iodine is a lustrous metal, non-metal. Name a non-metal which exists as liquid on room temperature. So इसका example हो जाएगा bromine. Then we have the allotropic form of non-metal is a good conductor of electricity. ये तो मैंने आपको बताया ही था, quiz में भी था. Graphite because of the presence of one valence electron. Okay. Name a non-metal which is known to form the largest number of compounds. Guys, ये तो you can guess only. Of course, it's carbon. उसके बाद name a non-metal other than carbon which shows allotropy. This is
sulfur. Name a non-metal which is required for combustion. Of course, जब combustion की बात हो रही है, then we have oxygen. Cool? So you have the answers. ये सब questions भी आपको पूछे जा सकते हैं. I know अभी आपने allotropy नहीं पढ़ी है या पढ़ी होगी. I don't know if it's good अगर आपने पढ़ी है तो. Okay, this is the last question. A solution has been prepared by mixing 5.6 ml of alcohol with 75 ml of water. Calculate the percentage by volume of alcohol in the solution. Okay, तो percentage by volume guys हमें पता है कैसे calculate करेंगे. Volume of alcohol देंगे जो कि given है और उसे हम divide करेंगे total volume of solution से, है ना. तो यानी कि 5.6 divided by 75 plus 5.6 कितना होगा 80.6 into 100 कितना होगा 6.95%. Calculate the percentage by volume of alcohol in the solution. 6.9%. Cool guys, these are the kind of numericals that you may get. Alright, I have solved all of the NCERT questions with you and even solved some bonus questions with you. So this class has been great. I will be conducting more classes like this where I will solve all the NCERT questions with you after I complete teaching you the chapters, of course. And if you like this class, then please go ahead to Unacademy, download the app. You can follow me there. The link to my profile is down below in the description. My name is Shreya and so is my referral code. My referral code is also Shreya. So use this referral code to get a plus subscription. याद से कोई भी जो भी आपको प्लान कंफर्टेबल लग रहा है आप उस प्लान की तरफ जाइए. अगर आपको 9th 10th 11th 12th का चाहिए, बस 9th का चाहिए, JEE का चाहिए, NEET का चाहिए, whatever suits you, you can use my referral code for that and get a 10% off and get all of these subjects being taught to you by the top educators in the country. Alright, so you subscribe to the channel, be sure to subscribe to the channel. Also the Telegram link is in the description below, so you can check that out. वहाँ पे हमारा चैनल है जहाँ पे हम जल्दी टेलीग्राम टेस्ट सीरीज कुछ एजुकेटर्स ने स्टार्ट कर भी दी है, मैं अभी कुछ दिनों में करूँगी. हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस. कमेंट डाउन बिलो if you have any doubts, if you have any suggestions, if you want me to take up anything else. So I'll be sure to take that up in the next chapter. Hit the bell icon for notifications, of course, as I said, so that you get to know whenever any of the amazing educators on our channel come live or their videos are being premiered, so you'll get to know about that. So thank you guys. This was Let's Crack CBSE 9th and 10th channel of Unacademy. Let's crack it. Do not forget to download the app and use my referral code and get the plus subscription. Alright? So bye guys. Thank you so much. I had a lot of fun solving all of these questions with you. Bye bye. I'll see you tomorrow.